Hello everyone, welcome to Learning Lab, where you can learn without limits. Today we are going to discuss Environment Section 3 previous year question of 2022. There are two most important questions that has been asked in this section. Of course, these are 11 marker and we have to keep utmost attention to these kind of questions because they are very scoring. Okay, more than 2 marker. We have to focus on our conceptual understanding in this. So without any further delay, let's start with the discussion. This question is saying what is meant by biodiversity conservation. So in the first part of our question, we have to explain this in detail, not in brief. In detail, we have to explain what do we understand by biodiversity conservation. And then we also have to mention that what are the efforts that have been made at the national level in this regard. So let's start with explaining what do we understand by biodiversity conservation, right? Biodiversity conservation, the name itself suggests what are we doing? We are trying to conserve something. Now we just have to look at what are we trying to conserve and why. So in your answer, you're first of all trying to explain this, you will mention one of the main feature, that is we are trying to maintain a balance through biodiversity conservation. The aim of biodiversity conservation is to maintain balance. You have to mention this word, otherwise your definition would be of no use. And then we will explain that how do we maintain this balance. Like do not use this abbreviation. I'm just using this abbreviation to explain you here. You have to write biodiversity conservation complete. So biodiversity conservation is a method of, what is this method of? Protection, preservation. We are trying to protect those who are endangered, those who are vulnerable, those who are on the verge of extinction, and preservation for the same, and their sustainable management. Sustainable management. Okay, of all this species we can say, or biodiversity we can say. Okay, now this is one of the definition. Now question would arise, because मैंने बोला कि detail में आपको explain करना है, सिर्फ definition देके नहीं छोड़ना है. So you also have to explain that what are we trying to this biodiversity, from which things we are trying to conserve them. So their aim is to prevent loss of biodiversity due to, now you have to mention all the reasons of loss of biodiversity. For example, first and foremost reason is habitat loss. And also remember, this has been asked previously that it is one of the major cause of biodiversity loss. In your prelims, this has been asked that what is the major cause of loss of biodiversity. Habitat loss is the major cause. Now, reason for habitat loss can be very different, but this is one of the main reason. Second is from pollution. Third is from overexploitation. मेनली फ्लोरा के केस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन का केस अराइज होता है. फोर्थ इज क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज इज मेजरली ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, बट उसको आप अलग से यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, एक्सेस ह्यूमन इंटरवेंशन. अदरवाइज यहाँ ये 4 रीजन मोर देन सफिशिएंट है. यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हैबिटेट लॉस में दैट टॉप रीजन या फिर फर्स्ट रीजन और मेजर रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस करके. दिस विल एक्सप्रेस योर एग्जामिनर or the copy checker who's checking your answer sheet. Now we are moving forward towards second part of our question. अच्छा, यहाँ पे चाहो तो आप कुछ मेजर डेटा वगैरह भी
मेंशन कर सकते हो। डेटा सबके अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करूंगी, बट आप चाहो तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल का या फिर इंटरनेशनल लेवल पे IUCN का, इन सब का डेटा मेंशन कर सकते हो। नाउ व्हाट एफर्ट्स हैज बीन मेड बाय नेशनल लेवल इन दिस रिगार्ड, तो अब हम आते हैं एफर्ट्स की तरफ। सी आई एम जस्ट डिटेलिंग ऑल द एफर्ट्स दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सबका तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे मैं एक तरीका बता रही हूँ जिसमें आप उसको अलग अलग डाइवर्सिफाई करोगे। जैसे कि हम दो तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लीगल जो तरीके होंगे, दूसरा एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो तरीके होंगे, ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लीगल एफर्ट्स की बात करते हैं, if you're talking about legal efforts at the first place, so first of all we'll mention Forest Conservation Act. Second, we are going to mention Wildlife Protection Act. (1972). Third, we are going to mention Biological Diversity Act. (2002). Fourth, we can also mention Environment Protection Act. (1986). एंड वी कैन ऑल्सो मेंशन, यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में आप NBA के बारे में मेंशन कर सकते हो, यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, वाइल्ड लाइफ चीफ ऑफिसर के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है, चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं उनके बारे में। एंड स्पेशली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आप सारे, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब कि लैंड, सॉलिड लिक्विड गैस मत करना, सीधे सीधे लैंड डिग्रेडेशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब के सब इनके अंदर कवर है। ये आप थोड़े थोड़े चीजों में मेंशन कर सकते हो। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर योर बायोडाइवर्सिटी। नाउ जब हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे आते हैं कि अलग अलग क्या क्या तरीके, कौन कौन से अलग अलग से एफर्ट्स मेंशन किए गए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क विच हैज लीगल बैकिंग। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क अलग से क्यों मेंशन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी से, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व से, बिकॉज दे हैव लीगल बैकिंग। जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आपका आ जाएगा नेशनल पार्क। अब इसमें आप ना नीचे एक एक लाइन में एग्जांपल मेंशन करते चलना, और आप ये भी लिख सकते हो जैसे कि मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैज बीन मेड येट। ठीक है, इसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंशन कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन मेड येट इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा फिर आप अलग से मेंशन करोगे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मोर देन सॉरी देयर आर अराउंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया टोटल। ठीक है, जिसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो सबसे अच्छे बायोस्फीयर रिजर्व्स का, जो बार बार न्यूज में भी रहते हैं, जैसे कि नीलगिरी का लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो सुंदरबन का लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंशन करोगे। एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, आई एम जस्ट मेंशनिंग प्रोजेक्ट हियर टू राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, 1973 में जो आपका लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया जो 1992 में आपका लॉन्च हुआ था। इसके अलावा आपके राइनोसोरस हो गए, ठीक है, आपके स्नो लेपर्ड्स हो गए। इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसोरस तो मैंने बता ही दिया, एशियाटिक लायंस हो गए। इन सब का एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हु आर एंडेंजर्ड। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अदर कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आई थिंक 1992 के बाद जो रिफॉर्म किया गया था उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट वी कैन फोकस ऑन लोकल पार्टिसिपेशन। किसी भी एक फ्लोरा या फौना का अपना एक तरीका होता है कंजर्व करने का, अपना एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है और वहाँ के लोकल लोगों को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होता है। सो इन्वॉल्विंग दोज लोकल पीपल इन द कंजर्वेशन प्रोसेस इज वेरी मच बेनिफिशियल, एंड दैट्स व्हाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके ये कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था।
ठीक है, इसके अलावा आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में मेंशन कर सकते हो, जैसे कि CBD के बारे में। आई एम जस्ट राइटिंग शॉर्ट फॉर्म अगेन। CBD आपका कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा आप रामसर कन्वेंशन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1987 का। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस you can also mention some specifics about public awareness। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसे कि जो हमारे डे टू डे डेली लाइफ में, क्योंकि अभी तक तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गए हुए थे, अब हम पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर देख रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हो नेशनल ग्रीन कॉप्स। ठीक है, इस जो स्टूडेंट्स लेवल पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं एनवायरमेंटल रैलीज जो आपकी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे RDA वगैरह जो होते हैं, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये सारे लोग एक मिनिमम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके रखते हैं। हर स्टेट का अपना अलग होता है, हर RDA का अलग, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके रखते हैं। सपोज अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो तो वहाँ कितना एरिया आपके ग्रीन पैचेस में आना चाहिए, कौन कौन सा पार्ट, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ लैंड आपको छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें सस्टेनेबल बनाती है हमारे लिविंग एनवायरमेंट को, हमारे आसपास के एनवायरमेंट को। ठीक है, देन यू हैव टू मेंशन अ ब्यूटीफुल लाइन, चाहे आप SDG गोल मेंशन कर दो। ठीक है, या फिर UN वगैरह का, सॉरी UN कहते हो, IUCN का, यस UN का भी आप चाहो तो कोई बढ़िया सा कोट मेंशन करके इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। मतलब यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंसाइज करना होता है इन दिस सर्टेन वर्ड्स। ओके, moving to our next question, it is asking briefly explain the theories of origin of the earth। As I told you, you will not be able to identify कि environment का question है कि geography का question है। although syllabus में नहीं mention है, syllabus में geography आपका GS paper 1 में mention है, still they are asking you question here about some concepts of geography। So let's look at this। Okay, so what this question is saying, you have to briefly explain the theories of origin of the earth। Okay, इंट्रो में आप लिख सकते हो वेरियस थ्योरीज हैज बीन इमर्जिंग सिंस द मैन हैज स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट अर्थ। ठीक है, इसके बाद मैं सीधे सीधे आपको थ्योरीज बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हो, चाहो तो ना डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पे ऐसे टाइमलाइन बना सकते हो। जैसे कि आपने एक लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ आपने मेंशन कर दिया नेबुलर हाइपोथेसिस, ये 1796 से शुरू हुआ था। इसके बाद आपका आ जाता है कंडेंसेशन थ्योरी। ठीक है, कंडेंसेशन थ्योरी। इसके बाद आ जाता है आपका प्लैनेटरी एक्रेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बिग बैंग थ्योरी। ओके, दिस वाज मोर अराउंड 1920। ठीक है, प्लैनेटरी एक्रेशन आपका, जैसे कि चैम्बरलिन थ्योरी, ये जो है ये 1900 में इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा इवॉल्व करवाया था चैम्बरलिन ने। ठीक है, एंड ये जो बिग बैंग थ्योरी है, दिस इज ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ योर नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये यहीं पे चाहो तो आप नाम भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज एक्सप्लेन करते हुए, जैसे ये आपने डायग्राम बना दिया, नीचे अब आप एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन करो और वहां पे उनके नाम मेंशन करो। जैसे मैं नाम यहीं पे आपके मेंशन कर देती हूँ और यही एक्सप्लेन करती हूँ, बट जब आप आंसर लिखोगे आपको अलग अलग इनको एक्सप्लेन करना है थ्योरीज को। ठीक है, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या हुआ था, इट वॉज मेंशन बाय इमैनुअल कांत। ठीक है, 1976 में इमैनुअल कांत ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, एंड ही सेड दैट आवर सोलर सिस्टम इज अ जायंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। जायंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और धीरे धीरे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी these giant dust collapsed and started spinning. In the influence of gravity, they collapsed and started spinning.
ठीक है, और यही बाद में जाके क्या बना, दे स्पिन अराउंड सन, और इसके सेंटर में क्या आया, स्पिनिंग के सेंटर में सन, एंड दैट्स हाउ आवर सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। ये इनका मेजर थ्योरी था। ठीक है, इसके अलावा जब चैम्बरलिन ने इसी को थोड़ा सा ही मॉडिफाई किया था, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, फिर दूसरा जैसे इन्होंने क्या बोला था कि, चलो ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चैम्बरलिन ने ये बोला था 1900 में सिगार शेप्ड होता है। ठीक है, सिगार शेप एग्जिस्टिंग पार्ट था सन का, तो उस सन का ये जो सिगार शेप था बेसिकली, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना ब्रेक डाउन हो गया, दिस ब्रोक डाउन एंड these parts started spinning around this sun, so this formed as sun, और बाकी ये जो पार्ट है this started spinning around the sun, और फिर ये पूरा का पूरा जाके क्या बन गया आपका सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर चैम्बरलिन थ्योरी। इसके अलावा सम बाइनरी थ्योरीज आ जाते हैं, और ये जो बाइनरी थ्योरीज है ना, यही है आपके ये तीनों अदर बाइनरी थ्योरीज में हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, so let me explain you this some binary theories here. क्या थे वो बाइनरी थ्योरीज, जैसे कि पहला दिया था आपके सर जेम्स जीन्स ने और हेरल्ड जेफरी ने। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनका क्या बोलना था, प्लैनेटरी एक्रीशन थ्योरी इन्होंने दिया था, सॉरी, they did not introduce planetary accretion, they introduced this condensation theory. ठीक है, कि gases condense हुई around and then they formed a circular solar system. ठीक है, इसके अलावा फिर आपके planetary accretion theory introduce किया था ऑटो श्मिट ने। ठीक है, ये थे रशिया से बिलोंग करते थे। इसके अलावा आपके कार्ल वाइस्कर, ये थे जर्मनी से बेसिकली। तो इन्होंने रिवाइज किया था नेबुलर हाइपोथेसिस को। ठीक है, दे रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। इन्होंने अब क्या बोला था, जैसे दो चीजें चेंज हुई थी यहाँ नेबुलर हाइपोथेसिस में। हमने क्या देखा था कि सबसे पहले कंटेंट क्या था और प्रोसेस क्या था। कंटेंट हमारा यहाँ पे क्लाउड, गैस और डस्ट था, और प्रोसेस यहाँ पे क्या था, ग्रेविटी के रीजन से ये कोलैप्स हुआ और फिर स्पिन होना शुरू हुआ। करेक्ट, यहाँ पे यही दोनों चीजें बदली हुई है। कंटेंट यहाँ पे हमारा अलग था और प्रोसेस भी अलग है, थोड़ा सा इन्होंने बस रिवाइज किया है। तो देखते हैं व्हाट वाज आवर कंटेंट। कंटेंट हियर वाज दैट आवर सन हैज फॉर्म्ड as a form of it was a combination of hydrogen and helium gases. ठीक है, इसका ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन था। ठीक है, सन और उसके अराउंड जो भी चीजें रिवॉल्व कर रही थी पहले से ही। एंड व्हाट वाज द प्रोसेस, प्रोसेस वाज फ्रिक्शन एंड कोलिशन। So this friction and collision led to formation of a disc shape cloud. ठीक है, और यही डिस्क शेप क्लाउड जो है बाद में ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एक्रेशन फॉर्म्ड प्लैनेट्स। ठीक है, ये आपका रिवॉल्व किया था ऑटो श्मिट और कार्ल वाइस्कर के थ्योरी के अराउंड, जिसको बोलते हैं हमारा प्लैनेटरी एक्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। बिग बैंग थ्योरी आई थिंक आप सबको पता है क्या बोलता है, दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, या फिर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी इसको बोला जाता है। इसका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसने इंट्रोड्यूस किया था और कब किया था, बिना नाम लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। सो 1920s में एडविन हबल ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। ठीक है, एंड व्हाट डिड ही से, he said that earlier the whole matter, I mean the whole universe was all matter and it was a tiny ball, in the form of tiny ball, and later it expanded and
exploded. And this explosion led to formation of sun and planets. ठीक है, अब आप इसके प्रोसेस को यहाँ पे पूरा का पूरा चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि कैसे फिर प्लैनेट्स बने, कैसे सन बना, मतलब हाउ द प्लैनेट्स फॉर्म्ड एंड हाउ द सन फॉर्म। बट यहाँ पे आपको सिर्फ बिग बैंग थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन करना है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप इतना लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, एंड दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सन एंड प्लैनेट, एंड एज द टाइम पासेस द गैलेक्सी एक्सपांड्स। ठीक है, नाउ यू वुड से कि कंक्लूजन में क्या लिखना है। कंक्लूजन में यू वुड राइट द मोस्ट अबाउट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है आपका, बिग बैंग थ्योरी, करेक्ट। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में मेंशन करोगे दैट यू नो एग्जांपल्स एंड यू नो ग्रेट एविडेंसेस सपोर्ट बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब इसी एविडेंसेस पे आप चाहो तो 2-3 एविडेंसेस लिख सकते हो। रेड लाइट एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, ग्रेविटी का फॉर्मेशन, ग्रेविटी लेंसेज जो हमने बनाए हुए हैं उनसे हमें जो ग्रेविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे जितने भी एविडेंसेस हैं जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, आप उनके बारे में यहाँ मेंशन कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, आप बोलोगे कि ये सब कहाँ से पढ़ें। अगर आपने कभी एनसीईआरटी नहीं विजिट की हुई है, सो प्लीज गो एंड विजिट। आई थिंक सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट यही है। एनसीईआरटी है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें 4 पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे के सारे थ्योरीज वहां एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर दिस, ये जो टाइमलाइन है अगर आप याद रखते हो तो ऐसे भी थ्योरीज आपको आराम से याद रहेगी। फर्स्ट इज योर नेबुलर हाइपोथेसिस, सेकंड इज अच्छा यहीं पे चैम्बरलिन का थ्योरी था 1900s में, थर्ड इज कंडेंसेशन थ्योरी, फोर्थ इज प्लैनेटरी एक्रेशन, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस एंड बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर योर 11 मार्कर थर्ड सेक्शन जो था 2022 का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी स्टार्टिंग विद 2021 पेपर एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट सेक्शन। If you want to discuss with us any kind of issue, any problem you are facing with your mains answer writing or preparation for MPPSC, you please connect with us in our Telegram channel. Link has been mentioned in the description. Okay, we will connect with you as soon as possible. Thank you all for joining me here. Stay curious and keep learning.